अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। 6 जुलाई को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करेंगे। दोनों रियासतों के मसाइल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स और 3 लैब्स का वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने किया इफ्तिताह। रियासत की तक़सीम के मौके पर आंध्र प्रदेश में शामिल किए गए मंडल्स को वापस लेने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बात करें, साबिक़ वज़ीर हरीश राव का मुतालबा। मजलिस अराकीन असम्बली और मजलिस रुकन कौंसल अवामी मसाइल की यकसोई में मसरूफ़, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद। तेलंगाना हुकूमत साइबर क्राइम को रोकने और साइबर सेफ स्टेट बनाने अपने अहद की पाबंद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। नारसिंगी में वाक़ क़ब्रिस्तान की अराज़ी पर गैर मुजाहिद कब्ज़े करने लैंड ग्राबर्स की कोशिश, मजलिस रुकन कौंसल का दौरा और चेयरमैन वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मंगल को तेलंगाना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का तफसीली दौरा किया और हैदराबाद, साइबराबाद के अलावा राचाकुंडा कमिश्नरेट के कमिश्नरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज मुख्तलिफ शोबेजात की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। नारकोटिक्स ब्यूरो की 27 गाड़ियाँ, 40 टू व्हीलर्स, तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी की 14 फोर व्हीलर्स और 30 टू व्हीलर्स को झंडी दिखाई। इस मौके पर मुताल्लिक़ा शोबेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। వంతుగా ముందుకొచ్చి వారొక వీడియోని అద్భుతంగా తయారు చేసి మా డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చిండ్రు. చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు ముందుకొచ్చి తెలంగాణ ఈ దేశంలో ఉన్న యువత డ్రగ్స్ మహమ్మారిన పడితే జరగబోయే నష్టాన్ని వారే ముందుకొచ్చి ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో వారు భాగస్వాములు అయినందుకు, ఆ విజువల్స్ మా కోసం ఇచ్చినందుకు చిరంజీవి గారిని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండే ప్రముఖులకు కూడా నా సూచన, మీ కొత్త సినిమాలు రిలీజ్ అయినప్పుడు టికెట్ ధరలు పెంచుకోవడానికి జీవోల కోసం ప్రభుత్వాల దగ్గరకు వస్తున్నారు, కానీ సామాజిక సమస్య అయిన సైబర్ క్రైమ్, డ్రగ్స్ నియంత్రణలో మీరు మీ సామాజిక బాధ్యతను నెరవేర్చడం లేదు అని మా ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. నేను మా అధికారులకు సూచన చేస్తున్నా, రేపు ఎవరైనా కొత్త సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, సినిమా ధరలు పెంచాలి అని ప్రభుత్వం దగ్గరికి అప్లికేషన్ వస్తే వాళ్ళు డ్రగ్స్ నియంత్రణ, సైబర్ క్రైమ్ నియంత్రణలో ఒక అద్భుతమైన వీడియో ఫుటేజ్ను ఆ సినిమాలో ఏ స్టార్స్ ఉన్నారో అదే స్టార్స్తో వాళ్ళు ఒక ప్రోగ్రాం మనకు చేసి ఇవ్వాలి. అది ప్రీ కండిషన్. నేను స్పష్టంగా మా అధికారులకు ఆదేశిస్తున్నాను, ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఎవరు వచ్చి మనల్ని రిక్వెస్ట్ చేసినా వాళ్ళు సైబర్ క్రైమ్కు సంబంధించి, డ్రగ్స్ నియంత్రణకు సంబంధించి ఆ సినిమాలో నటించిన తారాగణం, ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ 1.5-2 minutes నిడివిగల ఈ సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న వీటికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు మనకు వీడియో విజువల్స్ తీసుకొచ్చి ఇస్తేనే వాళ్ళకి ఏమైనా వెసులుబాటు, సౌలభ్యాలు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే సమాజం నుంచి ఎంతో వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు, సమాజానికి వాళ్ళు కొంతైనా ఇవ్వాలి, అది వాళ్ళ బాధ్యత. అట్లా కాకుండా మేము 100 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిన మా సినిమాకు మేము టికెట్లు పెంచుకొని మేము సంపాదించుకుంటామన్న ఆలోచన ఏదైతుందో మంచిదే, మీ వ్యాపారం మంచిదే, కానీ సామాజిక బాధ్యత. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का
اور کئی ایک وزراء کے ہمراہ بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کی جانب سے ان کو لکھے گئے مکتوب اور ریاست کی تقسیم کے موقع پر مرکزی حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے علاوہ آندھرا پردیش حکومت سے حیدرآباد میں ریاست کی تقسیم کے موقع پر دی گئی عمارتیں واپس لینے کے ساتھ ساتھ کئی ایک امور پر مذاکرات کیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش سے ہمارے بہتر تعلقات ہیں۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کی جانب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو لکھے گئے مکتوب کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ چندر بابو سے ہونے والی ملاقات میں تلنگانہ سے 7 منڈلز جو ریاست کی تقسیم کے موقع پر آندھرا پردیش میں شامل کر دیے گئے تھے اسے واپس لینے کے لیے بات کریں۔ انہوں نے کسان پربھاکر کی خودکشی کے واقعے کی تحقیقات کرنے اور ان کے افراد خاندان کو 25 لاکھ روپے ایکس-گریشیا دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ آسرا وظائف کی رقم میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ مئی کے مہینے میں جو وظائف فراہم نہیں کیے گئے اسے جاری کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ سینئر کانگریس قائد وی ہنمنت راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جو 3 قوانین نافذ کیے گئے ہیں بظاہر تو یہ اچھے محسوس ہو رہے ہیں، لیکن اس میں فریق کو اپنا نظریہ پیش کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ سابق رکن راجیہ سبھا ہنمنت راؤ نے لوک سبھا کے اپوزیشن قائد راہل گاندھی کی طرف سے کی گئی تقریر کو حقائق پر مبنی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ بی جے پی قائدین راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ లోపలేయడం బెయిల్ దొరకకుండా చూడడం అనేది చాలా కొన్ని అయితే బ్రిటిష్ లా కంటే ఎక్కువగా దుర్మార్గంగా పెట్టిండ్రు అయిపోయింది. అయితే నిన్న శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు డిఐజీ తెలంగాణ డిఐజీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన ఇవాళ నుంచి ఇది అమలు అవుతుందని నిన్న ఆయన చెప్పడం జరిగింది. నేను ఒకటి అడుగుతున్నా, హాజీపూర్ లో తీవ్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది. బిలో ఏజ్లు ఉన్నటువంటి పిల్లలను స్కూల్ కు పోతుంటే బస్సు లేక స్కూటర్ మీద ఎక్కించుకొని 3 అమ్మాయిలను రేప్ చేయడం అడ్డం జరిగింది. హిస్టారికల్ అది. కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏదైతే రాచకొండ కమిషనర్ ఉన్నాడో మహేష్ భాగవత్ చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని నేను 7 సార్లు పోయినా. దాని మీద శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీద నల్గొండలో కేసు నడిచింది. వాళ్ళు తీర్పు కూడా ఇచ్చిండ్రు. ఎప్పుడు ఇచ్చిండ్రు? 6 ఫిబ్రవరి 2020 అంటే ఇవాళ 20 ఎన్నేళ్ళు అవుతుంది? 4 ఏళ్లు దాటుతున్నది. 4 years. وزیر اطلاع ٹی ناگیشور راؤ نے راجندر نگر میں تعمیر کیے گئے انٹیگریٹڈ کمپلیکس اور 3 لیبس کا افتتاح عمل میں لانے کے بعد عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے بتایا کہ اراضیات کی جانچ کے علاوہ شعبہ زراعت سے تعلق رکھنے والے کئی کیمیکلز کا عصری لیب میں معائنہ کرنے کی سہولت ہوگی۔ انہوں نے عہدیداروں کو واضح کیا کہ کانگریس حکومت ریاست کے کسانوں کو ان کی اراضیات پر کاشت کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرے گی۔ پی ڈی ایس یو طلبہ تنظیم نے منگل کے روز کریم نگر اور ریاست کے کئی اضلاع میں خانگی اسکولز میں من مانی فیس وصول کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ پی ڈی ایس یو قائدین نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست بھر کے خانگی اسکولز میں مساویانہ فیس مقرر کرتے ہوئے اس سلسلے میں جیو جاری کرے۔
और फौरी तौर पर फीस रीइंबर्समेंट की अदायगी करते हुए सरपरस्तों को राहत पहुंचाई जाए। ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా విద్యారంగ సమస్యలు చాలా అధ్వానంగా ఉన్నాయి. ఈ యొక్క విద్యారంగ సమస్యల పైన ఉన్నటువంటి డిఓ గారు నిమ్మకి నీరెత్తినట్టు ఇంతవరకు కూడా ఏ ఒక్క ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కానీ ప్రైవేటు పాఠశాలలు కానీ ఇంతవరకు కూడా తనిఖీలు లేకుండా ఈరోజు మొదలుపోతున్న ప్రభుత్వ డిఈఓ అధికారులను వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈరోజు మేము కలెక్టరేట్ కూడా కలెక్టర్ గారికి మరి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ను కూడా తక్షణమే విడుదల చేయాలి. 25% ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అమలు చేయాలి. అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కళాశాలలు కూడా మౌలిక వసతులు. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू 6 जुलाई को तेलंगाना के अपने हम मनसब रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना किया है। मकतूब में रेवंत रेड्डी की सताइश भी की गई है। चंद्रबाबू नायडू ने दोनों रियासतों के बाहमी मसाइल का भी जिक्र किया है। वाज़ेह रहे कि रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम में चंद्रबाबू नायडू के साथ काम कर चुके हैं और सियासी तौर पर दोनों के ताल्लुकात काफ़ी गहरे बताए जाते हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाईएस शर्मिला ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। शर्मिला ने 8 जुलाई को विजयवाड़ा में होने वाली वाईएसआर जयंती तकारीब में शिरकत की पार्टी कायदीन को दावत दी। बीआरएस के रुकन असम्बली साबिक वज़ीर हरीश राव ने खम्मम में किसान प्रभाकर की खुदकुशी मामले की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि जो भी ओहदेदार प्रभाकर के कत्ल में मुलविस हैं उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभाकर की खुदकुशी कांग्रेस हुकूमत की नाकामी है और किसानों को नज़रअंदाज करने का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान के वालिद ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। हरीश राव ने मुतौफ़ी के अफराद ख़ानदान को 25 लाख एक्सग्रेशिया और ख़ानदान के रुकन को सरकारी मुलाजिमत का मुतालबा किया है। అనే దాన్ని ఈ వీడియో ఆ రైతు ఆత్మహత్య ఇలా మనకు సూచిస్తూ ఉంది. ప్రభాకర్ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన తండ్రి గారు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభాకర్ చెప్పిన పేర్లతో కంప్లైంట్ ఇస్తే కంప్లైంట్ తీసుకోవడానికి కూడా పోలీసులు నిరాకరిస్తున్నారు. నిన్నటి నుంచి ప్రభాకర్ తండ్రి ఆయన నార్మల్గా సూసైడ్ నోట్లో కానీ చనిపోయే ముందు చెప్పినటువంటిది ఆటోమేటిక్గా దాన్నే మరణ వాంగ్మూలంగా స్వీకరించి కేసులు పెడతాం మనం. అంత స్పష్టంగా వీడియోలో ఉన్న తర్వాత కూడా స్పందించాల్సిన పోలీసులు స్పందించకపోగా మృతుడి యొక్క తండ్రి గారు వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ తీసుకోవడానికి కూడా నిరాకరిస్తున్నారు పోలీసులు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా తయారైపోయిందో మీరు చూడండి. నిజంగా ఇవాళ ప్రభాకర్ చావుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కారణం, ఈ ప్రభుత్వం పాలన కారణం. ఆయన ఎస్ఐ గారి దగ్గరికి పోయారు, ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గరికి పోయారు, కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి పోయాను అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పాడు. ఆ ముగ్గురిలో ఏ ఒక్కరైనా స్పందించుంటే ఇవాళ ప్రభాకర్ బతుకుండేవాడు కదా. అంటే పాలన సరిగా లేదు. ఎస్ఐ గారు స్పందించలేదు, తహసీల్దార్ గారు స్పందించలేదు, కలెక్టర్ ఆఫీస్లో న్యాయం జరగలేదు. ఇంకా చివరికి నాకు చావే దిక్కు అని చెప్పి ఆయన ఈరోజు తన ప్రాణాన్ని వదులుకున్నాడు. ఇది చాలా బాధాకరం. వాస్తవానికి ఏ రైతు కూడా చనిపోవద్దనే కోరుకుందాం, ధైర్యంగా ఉండాలి, పోరాడాలి. అటువంటి వాళ్ళ పక్షాన ప్రజలు మాకు ఇలా ప్రతిపక్ష బాధ్యత ఇచ్చారు. ఇటువంటి కష్టాల్లో ఉండి
मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और मोहम्मद मुबीन ने अपने मुतालिका हल्क़े जात में बल्दी मसाइल का जायज़ा लेते हुए उसकी यकसोई के लिए ज़रूरी हिदायतें दी, जबकि मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने नारसिंगी में वाक़ ख़बरस्तान की अराज़ी पर गैर मजाज कब्ज़ों के ख़िलाफ़ चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड से नुमाइंदगी की। नाज़रीन, मजलिसी क़ायदीन से मुताल्लिक़ इन ख़बरों को देखते हैं तफसील से। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं और उनकी यकसोई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने सैदाबाद डिवीज़न के इलाक़े आसमानगढ़ SWG लाइन और सड़कों का मुआयना किया। इसके अलावा अहमद बलाला ने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा बल्दी बरखी और वाटर वर्क्स के अलावा महकमे सीवरेज के अहदेदारों और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान कौंसल अवामी मसाइल की यकसोई में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने इत्तला हासिल होने पर नारसिंगी में वाक़ ख़बरस्तान पहुँचकर मुकामी अवाम की शिकायत का जायज़ा लिया। मुकामी अवाम के मुताबिक नारसिंगी में वाक़ ख़बरस्तान में अराज़ी पर लैंड ग्राबर्स की जानिब से गैर मजाज तौर पर कब्ज़े की कोशिश की जा रही है, जिसकी इत्तला मजलिसी क़ायदीन को दी गई थी। बाद अज़ां मिर्ज़ा अहमद बेग ने रियासती वक्फ़ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और इस सिलसिले में तफसील से वाकिफ़ करवाया। चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने तयक़ुन दिया कि वक्फ़ बोर्ड इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाएगा। बाद अज़ां मीडिया को भी तफसील बताई गई। और हमारे कारपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद साहब और मुर्तज़ा अली साहब और नारसिंगी के जो ख़बरस्तान के ज़िम्मेदारान हैं और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, पूरे मिलकर आकर आज वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मुलाकात किए, जो कि 4 दिन से नारसिंगी का जो आउटर रिंग रोड का जो ख़बरस्तान है सर्वे नंबर 491 और वक्फ़ बोर्ड की गज़ीट जो है 491 की, उसके ऊपर जो कि गज़ीट में 2 एकड़ 3 गुंठे ज़मीन है और उसके बाजू कुछ लोग की ज़मीन है, उनकी ज़मीन आउटर रिंग रोड में चले गए बार, और वो लोग HMDA से मुआवजा लेने के बावजूद भी ख़बरस्तान की ज़मीन में आ रहे थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर आज से 4 दिन पहले जो वहाँ पर सर्वे कराया जा रहा था, उस सर्वे को रुकाया गया। वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन साहब को बताया गया कि ये वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन है। तो हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कभी भी ऐसे लैंड ग्राबरों की तरफ से वक्फ़ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर ऐसा होता है तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी कार्रवाई करती है और उस चीज़ को रुकाती है। आज भी तमाम ज़िम्मेदारान आकर चेयरमैन साहब से मिले और चेयरमैन साहब को यही बताया कि जो ख़बरस्तान की ज़मीन 2 एकड़ 3 गुंठे जो ज़मीन है वो ज़मीन की बाउंड्री फिक्स करना ज़रूरी है बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बताए। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े बहादुरपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी मसाइल की समाअत करते हुए उनकी यकसोई के लिए इक़दाम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मंगल को मुख्तलिफ महकमे जात के हमरा बहादुरपुरा नाले का मुआयना किया और उन्होंने बताया कि 4 दिनों से नाले का काम जारी है, जबकि 15 फीट सड़क की तोसी का काम भी होने वाला है। ज़रूरत के मुताबिक अराज़ी हुसूल की जा रही है और इसी सिलसिले में नोटिसें भी जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को सदर मजलिस की तरफ से भी प्याम से वाकिफ़ करवाया गया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर भी मौजूद थे, जबकि रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने पैदल दौरा करते हुए दीगर मसाइल का भी तफसीली मुआयना किया।
आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैस साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद सादर साहब और दीगर ऑफिसर्स यानी के प्रोजेक्ट्स मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाटर वर्क्स के तमाम आला अहदेदार आज बहादुरपुरे का जो नाले का काम चल रहा है, आज से 5 दिन पहले जब सदर मोहतरम ने दिल्ली से टेलीफोन कर बताया था कि पूरे ऑफिसर्स के साथ जाकर उस नाले का मुआयना करवा कर इमीडिएट काम को शुरू करवाएं, और हमने 5 दिन पहले पूरे ऑफिसर्स को लेकर आके बताए और इमीडिएट काम को शुरू करने के लिए कहा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम यानी कंटिन्यू में 4 रोज से काम शुरू हो चुका है और जो 28 प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट हो रहे हैं, जो 7 फीट इधर 7 फीट उधर नाले के यानी 15 फीट टोटल वाइंडिंग करना है। तो लिहाजा जो जहाँ पर भी हमारे को सफिशेंट है वहाँ पर उसको तोड़ा गया है, और जीएस वेंकट हॉल जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर से जानी जाती है वो, और उसके बाजू के प्रॉपर्टीज़ है और केडिया वालों की बाजू की प्रॉपर्टीज़ है। लिहाजा उन तमाम को नोटिस किए जा रहे हैं। इमीडिएट जहाँ जहाँ पर खुला है वहाँ पर उस काम को शुरू करवा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम को हम जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए सदर मोहतरम ने हिदायत की है, और इस काम में तेज़ रफ्तार पैदा करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे तमाम अहदेदार भी एक्टिव हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम को इमीडिएट जितना जल्दी हो सका है उस काम को हम मुकम्मल करेंगे। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में हुए लॉरी और स्कूल बस के तसादुम में बस का क्लीनर हलाक और 15 से ज़ायद तलबा ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक RSR इंटरनेशनल स्कूल की बस 36 तलबा और स्टाफ को लेकर जा रही थी कि लॉरी से तसादुम हो गया। यह हादसा कवाली के पास पेश आया। बताया जा रहा है कि लॉरी ने पीछे से स्कूल बस को टक्कर दी है। ज़ख्मी तलबा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। महलूक क्लीनर की शिनाख्त 60 साला चिन्ना मल्लेश्वर राव की हैसियत से की गई है। रियासत तेलंगाना के DGP ने 3 मुजरिमाना नए क़वानीन के सिलसिले में तशहीरी पोस्टर जारी किया है। DGP रवि गुप्ता के हमरा पुलिस के दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। 1 जुलाई से नए क़वानीन पर अमल शुरू हो गया है। बेरोजगार JAC के लीडर मोतीलाल ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। 9 दिनों से मोतीलाल भूख हड़ताल कर रहे थे और इन्हें तबीयत बिगड़ने पर गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मोतीलाल से BRS के लीडर हरीश राव ने भी मुलाकात की थी, लेकिन अब मीडिया से बात करते हुए मोतीलाल ने कहा कि बिगड़ती सेहत की वजह से उन्होंने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया है। ताहम उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 दिनों से हुकूमत ने उनकी भूख हड़ताल पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन कल से वो अपनी एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। आंध्र प्रदेश के ओंगुल में ड्यूटी के दौरान शराब पीने वालों के साथ मस्ती करने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तफसीलात के मुताबिक मंडलामूर मंडल के शंकर रावपुरम में 2 सियासी जमातों के ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई थी और इस सिलसिले में वहां पर पुलिस का पिकेट्स तैनात किया गया था। इस पुलिस टीम की क़यादत ASI वेंकटेश्वर कर रहे थे। ताहम जब एक वीडियो मंजर पर आया जिसमें वो शराबियों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आए तो ज़िला SP सुमित सुनील ने उन्हें VR पर भेज दिया और उन्हें IG दफ्तर में रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। apa
ఇటు తెస్తున్నాను నేను అందుకే డాన్స్ చేస్తా నా డాన్స్ అబ్బా ఇసుకో కుర్రదా అన్నా. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 6 जुलाई को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करेंगे। दोनों रियासतों के मसाइल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स और 3 लैब्स का वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने किया इफ्तिताह। रियासत की तक़सीम के मौके पर आंध्र प्रदेश में शामिल किए गए मंडल्स को वापस लेने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बात करें, साबिक़ वज़ीर हरीश राव का मुतालबा। मजलिस अराकीन असम्बली और मजलिस रुकन कौंसल अवामी मसाइल की यकसोई में मसरूफ़, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद। तेलंगाना हुकूमत साइबर क्राइम को रोकने और साइबर सेफ स्टेट बनाने अपने अहद की पाबंद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। नारसिंगी में वाक़ क़ब्रिस्तान की अराज़ी पर गैर मुजाहिद कब्ज़े करने लैंड ग्राबर्स की कोशिश, मजलिसी रुकन कौंसल का दौरा और चेयरमैन वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी। नाज़रीन, वीडियोस की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रिव्यू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रिव्यू न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।